Good morning, everyone. Once again, I hope I am audible to everyone and you all are able to see the screen which I am being sharing with you all. All right. Hello. Hello. All right. So, in the last class, what we have done was something like we have started uh, the the next topic in our what do you call it? As per the readings in the unit one, and today we will proceed with the chapter of N. Jadhav, Money Matters, and the chapter number is second in the unit 1 from the readings of N. Jadhav. Alright, so we have discussed the money concepts and measures. We have tried to understand what are the conceptual difficulties or conceptual issues related to the money. Alright, hello. And we have seen that there are two clashes between the two thought processes, or you can say there are two schools of thoughts. That thinks that the money, the definition of money and the measure of money, in regard to the definition of money and the measure of money. All right, the first one was the theoretical approach and another one was the empirical approach. The theoretical approach propounded that we are supposed to first conceptualize the money, and then we will measure and take things whatever confirms that conceptualization. All right, and we are supposed to take the assets accordingly, whereas the empirical approach says we are supposed to take all those assets which are liquid in nature, aggregate of those assets which are liquid in nature, so that every asset which is liquid financial asset can be called as money, because it has a correlation with the national income, or you can say the economic activity. There is a stable relationship, and that was the discussion we had in our last class. All right, so today we'll proceed further from here only. So these were some definitional issues, and now we'll proceed with the functional issues. When I say the functional issues, what does this mean? Yes. Is there anyone who can? So let's start the functional issues. तो functional issues में क्या है कि हम functions of money को पढ़ेंगे. Functions of money के accordingly issues को हम पढ़ेंगे. फंक्शंस ऑफ मनी के अकॉर्डिंगली पढ़ने का मतलब क्या है कि इसको समझने के लिए कि व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड विद द फंक्शंस ऑफ व्हाट डू यू कॉल इट मनी, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मनी के फंक्शंस क्या क्या हैं. ठीक है, और हम इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. एक तरीके से इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई कि जब मनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे जो हमने बार्टर सिस्टम के टाइम पर पढ़ी थी प्रॉब्लम्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि जो एक तरीके से इन द एब्सेंस ऑफ मनी, इन द एब्सेंस ऑफ मनी, इन द एब्सेंस ऑफ मनी देयर इज अ बार्टर सिस्टम. एब्सेंस ऑफ मनी में क्या होगा? बार्टर सिस्टम होगा. यस और नो? कि जब मनी एब्सेंट रहेगी तो बार्टर सिस्टम प्रिवेल करेगा. अब बार्टर सिस्टम की अपनी समस्याएं थी. कौन कौन सी समस्याएं थी बताओ जरा, कोई बता सकता है आप में से? यस, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड? हाँ हाँ, क्या मतलब हुआ उसका बताओ जरा. आपने बताया डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वर्ड, हमने डिस्कस भी किया था, तो उसका मतलब क्या निकला है? अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि जब एक कमोडिटी की ज़रूरत हमें है तो दूसरे को भी वो, हमारे पास जो है वो दूसरे को चाहिए, और जो दूसरे के पास है वो हमें चाहिए हो, है ना? ये मतलब हुआ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वर्ड. अब इससे प्रॉब्लम क्या होती थी? इससे प्रॉब्लम क्या होती थी बताइए मुझे. अच्छा, गुड्स मिल नहीं पाते थे. ठीक है, कोई और?
नहीं वो ठीक है, वो तो एक दूसरा एस्पेक्ट हो गया, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स का आपके हिसाब से और कौन से ड्रॉबैक था कि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट होने से, और क्या क्या प्रॉब्लम थी जो हमें फेस करनी पड़ी ओनली बिकॉज ऑफ द डबल कॉन्सिड, हमें मतलब सी द ह्यूमैनिटी को मीन्स द मैन काइंड, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इज बीइंग फेस्ड बाय द मैन काइंड, हमसे मतलब मेरा ये है। सेम टाइम पे ट्रांजैक्शन करना होता था, अच्छा और कुछ, और कुछ एक एक मैंने बताया था आप लोगों को, एक मैंने बड़ा एक्सक्लूसिवली मैंने बताई थी, मैं सोच रहा था कि आप लोगों को याद होगा क्योंकि वो मेन बात है। देखो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनना कि किस तरह की प्रॉब्लम है ये, ठीक है। कि आपको कोई सामान खरीदना है, ठीक है। मैंने कहा था कि जब बार्टर सिस्टम होता है तो सेल और परचेज सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर होते हैं, हेलो, है ना। कि जो बार्टर सिस्टम होता है उसमें सेल और परचेज दोनों सेम टाइम पर होंगी। तो सेल और परचेज सेम टाइम पर होने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो मेरे पास है वो किसी दूसरे को चाहिए हो, और जो मुझे चाहिए वो उस दूसरे इंडिविजुअल के पास होना चाहिए, इजंट इट, हेलो, इजंट इट, यस और नो। तो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब ये है। अब इसमें क्या होता है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज इट मे टेक अ टू लॉन्ग टाइम period that you will not be able to find the individual which has the commodity that is being required by you, or the individual who wants the commodity that is being owned by you। यानी कि जो commodity आपके ऐसा आदमी मिलने में टाइम लग सकता है, isn't it, हेलो, ऐसे इंडिविजुअल को ढूंढने में टाइम लग सकता है। तो टाइम लगने का मतलब क्या है, कि टाइम लगने का मतलब क्या है, एफिशिएंसी आपकी कम होगी काम करने की, यस और नो। इसको कुछ इस तरह से लेके देखिए कि आपको कोई सामान खरीदना है मार्केट में, पर आपको उसको बेचने वाला कोई नहीं मिल रहा। कई बार होता नहीं है, शॉपिंग जब हम करने जाते हैं तो शॉपिंग करते वक्त हमें टाइम क्यों लगता है, वो इसलिए लगता है कि जो कमोडिटी हमें चाहिए होती है, जिस तरह की हमें चाहिए होती है, वो मिल ही नहीं रही होती है मार्केट में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हेलो, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो बार्टर सिस्टम में टाइम कंज्यूमिंग होता है बार्टर सिस्टम, और उसमें अलग तरह की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि किस फंक्शन के साथ कौन सी प्रॉब्लम आती है, और मनी उसमें किस तरह से एक तरीके से ऐड ऑन करके उस प्रॉब्लम को दूर करती है। तो सबसे पहले आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन अगर मनी परफॉर्म करती है तो उससे हमें क्या क्या फायदा होता है, ठीक है। क्योंकि बार्टर सिस्टम में तो हमारा टाइम ज्यादा लग रहा था, यस और नो, हेलो, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज में जब मनी आ गई है तो इसका मतलब क्या होगा, पीपल आर एबल टू spend small fraction or spend small fraction of their time and energy for shopping, ठीक है। कि मनी आ गई और मनी ने एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करना शुरू किया, तो उससे क्या हुआ, लोगों के टाइम और एनर्जी जो लगती थी शॉपिंग करने में, वो टाइम और एनर्जी कम हो गई, हेलो, यस और नो। दूसरा क्या आ गया कि जो स्कोप ऑफ जो एक्सचेंज था वो बढ़ गया, स्कोप ऑफ एक्सचेंज ब्रॉडन हो गया। एक्सचेंज का स्कोप बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, कि पहले तो आप क्या थे, आपके पास एक पर्टिकुलर कमोडिटी है। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, आपके पास एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, उसी के अगेंस्ट आपको कोई ना कोई कमोडिटी दूसरी चाहिए होगी, और दूसरे पर्सन को वही कमोडिटी चाहिए हो जो आपके पास हो। तो
बार्टर सिस्टम में क्या होता था, सेल और परचेज एक ही टाइम पर होते थे, तो एक्सचेंज करने में या इस तरह के इंडिविजुअल को ढूंढने में कई बार टाइम ज़्यादा लगता था, पर और टाइम ज़्यादा लगता था इसलिए जो एक्सचेंज हम करते थे वो बड़े ही लिमिटेड एक्टिविटीज़ में और बड़े ही लिमिटेड एक्सचेंज हो पाता था। बट क्योंकि मनी आ गई है, तो मनी के आने से अब हमारी सेल की और परचेज की दोनों एक्टिविटीज सेपरेट होगी। कि मनी ने क्या किया, बिकॉज ऑफ द existence of money, what happens is, because of existence of money there is a separation, there is a separation between sales and purchase activities. सेल और परचेज एक्टिविटीज में क्या आ गया है, सेपरेशन हो गया कि सेल एक्टिविटी अलग है, परचेज एक्टिविटी अलग है, दोनों अलग अलग होंगी। बार्टर सिस्टम में जबकि ये दोनों एक जैसी थी, बार्टर सिस्टम में जबकि ये दोनों कैसी थी, एक साथ होती थी। तो क्योंकि ये सेपरेट हो गई है, तो अब जो कमोडिटी या जो भी आर्टिकल किसी भी एक इंडिविजुअल पोजेस करता है वो उसको सेल कर सकता है, सेल करके मनी ले सकता है, और जो वो मनी आएगी उससे वो n नंबर ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज को परचेज कर सकता है, n नंबर ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज को क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। इज दैट ओके? तो जिससे क्या हो गया, स्कोप ऑफ एक्सचेंज जो हो गया ब्रॉड हो गया, कि पहले अगर उसके पास सिर्फ वीट था तो वो वीट के बदले में जो इंसान कोई कुछ देना चाहता था तो सिर्फ उतनी ही चीजें लेन देन कर सकता था। बट अब क्या है, अब क्या हो गया कि अब उसके पास वीट है तो ही कैन सेल द वीट इन द मार्केट and have money in exchange and keep the money with himself, and that money can be used for purchasing any other commodity of his likes. Is that okay? Or his choice, provided he has the sufficient money. Isn't it? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, दूसरा क्या बेनिफिट हुआ कि डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीजेस। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, बता सकता है कोई? हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? आप में से कोई बता सकता है डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, या आप समझते हैं डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? हेलो, प्लीज पार्टिसिपेट स्टूडेंट्स, यस और नो, प्लीज डू रिप्लाई। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग? हाँ, यस 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 यस, विशाल, लालू प्रसाद, हु एल्स, पंकज, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, कोई और कुछ बता सकता है? चलिए, एनीवेज लेट मी, हाँ बोलो 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 बोलो, क्या नाम है बेटे आपका? हाँ विशाल, बोलो विशाल। हम्म हम्म शाबाश, ठीक कह रहे हो आप। थोड़ा मैं इसको और एलोबरेट कर देता हूँ। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि लेबर जो है वो अलग अलग फॉर्म में हो सकती है, लेबर की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती है। डिफरेंट फॉर्म्स होने का मतलब हो गया, एक तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो एंश्योर करती है किसको, स्पेशलाइजेशन, यस और नो, स्पेशलाइजेशन, कि वर्क इज बीइंग डिवाइडेड स्पेशलाइजेशन की तरह। अब जैसे मान लीजिए कोई नल ठीक करने वाला है, अब पहले अगर बार्टर सिस्टम में कोई नल ठीक कर सकता है तो वो उसको चाहिए चावल, तो वो उसी की नल ठीक करेगा जहाँ जाकर चावल मिलेंगे उसको, है ना। और ऐसे चांसेस बहुत कम होंगे कि जिनके पास चावल हो उन्हीं की नल खराब हुई हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, ठीक है ना। बट तो जिसके कारण क्या होता था कि जो भी लेबर जिस भी फॉर्म में काम कर रही है या जिस भी काम को कर रही है,
तो उसका रेमुनरेशन डिसाइड करने में, हाउ मच इज टू बी पेड इन व्हाट फॉर्म, दैट वाज द डिफिकल्टी। ऑलराइट, तो वो डिफिकल्टी थी, तो उसको रिमूव हो गए किसके कारण? मनी के कारण। अब मनी आ गई तो अब जो इंसान जो भी काम कर सकता है उसका रेमुनरेशन डिसाइड हो सकता है। प्लम्बर का अलग हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का अलग हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन का अलग हो सकता है, यस और नो, डॉक्टर का अलग हो सकता है, ऐसे ही टीचर का अलग हो सकता है, ऐसे ही एटसेट्रा और भी प्रोफेशन है। तो इससे क्या हुआ? स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा मिला मनी के आने से, क्योंकि लेबर क्या थी? अपनी सर्विसेज सेल करने लग गई। अब पहले भी सर्विसेज तो होती थी, कोई लेबर अगर अपनी सर्विसेज देगा तो पहले के टाइम में क्या होता था? रेमुनरेशन डिसाइड करने में काफ़ी टाइम और एफर्ट्स लगते थे, काफ़ी जद्दोजहद लगती थी कि भाई किसी ने कोई काम किया तो उस काम की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, उसको डिटरमाइन करने में टाइम लगता था, यानी कि उसमें प्रॉब्लम्स आती थी, ठीक है, क्योंकि लेबर की कोई स्पेसिफिक फॉर्म तो होती नहीं है। भाई कोई कहे मैंने मेहनत की, अब मेहनत कोई ऐसे तो दिखती नहीं है, उसका तो रिजल्ट नजर आता है। मेहनत इज इंटेंजिबल, the result of your effort is tangible. Is that okay? Hello. And whatever mental and physical efforts an individual is putting in doing some work, that is his labor. कि जितना भी वो मेंटल और फिजिकल एफर्ट लगा रहा है किसी काम को करने में कोई भी इंडिविजुअल, तो वही उसकी क्या है? लेबर है। इज दैट ओके? तो जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो आसान हो गई बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ मनी। क्यों हो गई? क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ मनी है तो आप इंडिविजुअल को पे कर सकते हो उसके एफर्ट के अकॉर्डिंगली, और वो अपनी पसंद की जो भी गुड्स और सर्विसेज खरीदना चाहे वो ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ कि ग्रेटर एफिशिएंसी in the allocation of resources. कि रिसोर्स एलोकेशन में एफिशिएंसी बढ़ गई। अब रिसोर्स एलोकेशन में एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक तरीके से जो पहले था, पहले तो सेल और परचेज सेम थी, तो बायर और सेलर सेम था। एक ही इंडिविजुअल खुद बायर भी है और खुद सेलर भी है, और दूसरा इंडिविजुअल भी बायर भी है और सेलर भी है। इज दैट ओके? जो हमने बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस पढ़ी थी जब हमने ये पहली क्लास शुरू की, उसको एक बार चाहो तो दोबारा से वीडियोस मैंने भेज रखे हैं आप लोगों के पास, तो आप उसको देख सकते हो। जो सबसे फर्स्ट क्लास के मैंने वीडियोस भेजे थे फर्स्ट क्लास में, जो हमने टॉपिक कवर किया था, तो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस भी हमने उसमें डिस्कस की थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमने बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस डिस्कस की थी तो उसमें क्या था कि भाई सेल और परचेज सेम टाइम पर होती है, एक ही इंडिविजुअल बायर भी है और सेलर भी है उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर दूसरा इंडिविजुअल भी बायर भी है और सेलर भी है। बट क्योंकि मनी की एग्जिस्टेंस से बाइंग और सेलिंग दोनों एक्टिविटीज सेपरेट हो गई हैं, तो जिसके कारण आपका डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट एग्जिस्ट कर जाता है, जिससे क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई कैन बी सेग्रीगेटेड, डिमांड एंड सप्लाई कैन बी सेग्रीगेटेड, ठीक है। और डिमांड सप्लाई सेग्रीगेट होने से मतलब क्या है? रिसोर्स एलोकेशन। ये आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ा है जो फर्स्ट सेमेस्टर में थी, कि रिसोर्स का एफिशिएंट एलोकेशन तब कहलाता है जब वो मार्केट फोर्सेस की तरह से हुआ हो, यानी कि मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी किसी भी कमोडिटी की, वो जो प्राइस होगा वो एफिशिएंट मार्केट प्राइस होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, और वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। तो ये जो डिमांड सप्लाई की फोर्सेस है ये एक तरीके से एफिशिएंसी को एंश्योर करती हैं, क्योंकि ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आती है कि जो मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है उसी चीज़ की सप्लाई उतनी ही क्वांटिटी में की जाए, और जो फोर्सेस हैं, जो इंटेंसिटी है डिमांड और सप्लाई की, वो डिसाइड करती है कि प्राइस क्या होगा। इज दैट ओके? तो क्या हुआ कि मनी आने से, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आने से, ये सारे एक तरीके से एडवांटेजेस मिलने लगी
कि मनी की एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कोई डाउट हो, कोई सवाल पूछना हो इससे रिलेटेड तो पूछ सकता है. यस, आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस. जितना अब तक बताया उससे रिलेटेड किसी ने कोई सवाल, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है, ताकि नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. हेलो, हाँ ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मनी के आने से एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी के आने से क्या हुआ कि जो लोगों के एफर्ट थे, जो एनर्जीज थी, वो बच गई, और वो एनर्जी बचकर किसी और गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में या अदर एक्टिविटीज में लगाई जा सकती है. यानी कि जो टाइम और जो एफर्ट हम पहले, या जो रिसोर्सेज हम पहले सिर्फ एक्सचेंज करने के लिए, सिर्फ शॉपिंग करने के लिए जो टाइम और एफर्ट हम लगाते थे, अब वो टाइम और एफर्ट को हम बचाकर किन्हीं और एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं. दिस इज व्हाट इट मीन्स. इज दैट ओके? हेलो, ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब बारी आती है यूनिट ऑफ अकाउंट की. मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट. अब आता है मनी as a unit of account. Money as a unit of account. अब यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? हाँ, हेलो, यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? इसको आप मेजर ऑफ वैल्यू भी कह सकते, वैल्यू भी कह सकते. अब जब बार्टर सिस्टम है, तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि भाई जितने गुड्स हैं उसके हिसाब से ही, जितने नंबर ऑफ गुड्स होंगे उसके हिसाब से ही आपके क्या कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज रेट्स हो जाएंगे. तो एक तरीके से इन बार्टर सिस्टम क्या होगा? इन बार्टर सिस्टम the relative price of a commodity or an item are expressed in terms of all other commodities अवेलेबल. इसका मतलब हो गया जितनी कमोडिटी अवेलेबल है उस एक कमोडिटी को छोड़कर. वी वर डिस्कसिंग दैट कि अगर बार्टर सिस्टम है, कि बार्टर सिस्टम में क्या है कि जो रिलेटिव प्राइस है किसी एक कमोडिटी का, वो बाकी जितनी भी कमोडिटीज है उनकी टर्म्स में एक्सप्रेस होगा. यस और नो? और उनके टर्म्स में एक्सप्रेस होगा, और जितनी क्वांटिटीज एक्सचेंज होगी उन क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होगा. यस और नो? कि दोनों ही टर्म्स में क्या होगा? वो एक्सप्रेस्ड होगा. हेलो, तो जिसके कारण क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ प्राइसेस क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ प्राइसेस एग्जिस्टेड इज इक्वल्स टू क्या होगा? n इंटू में n-1 अपॉन 2. ठीक है, वेयर n इज नंबर ऑफ कमोडिटीज, वेयर n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कमोडिटीज. कि जितनी कमोडिटीज हैं, जितनी कमोडिटी एग्जिस्ट करती हैं उतने प्राइसेस हो जाएंगे, उसी हिसाब से प्राइस हो जाएंगे. अब निकाल के देख लेते हैं. सपोज करो अगर n की वैल्यू 5 है तो कितने प्राइस हो गए? 5 विद इन ब्रेसिस 5-1 अपॉन में 2. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन में 2. तो दिस वुड बी आई थिंक 20. हेलो, upon में 2, that will comes around to be 10 even. Now suppose if n is 10,
ये n 0 था, ये n 1 हो गया, लेट अस assume. If n is 10, then what would be the answer? Tell me, hurry up, everyone. So total number of prices t with tp would be equals to how much? 45. Now see, and suppose if n is 100, what would be the total number of prices existed? Yes, tell me. Hello. What would be the 100 into में I think 99 upon 2. This would be the, so this would be 9900 divided by 2. So hello, this would comes out to 4950. Now you can imagine, you see, and if there are suppose n3 there are 1000 commodities. Now what would be the answer? Tell me. Suppose if there are 1000 commodities in an economy, so how many prices will exist? This would be something like 1000 into may 999 divided by 2, and that would probably comes out to be 49950. Now you can imagine how many prices are existing, you can imagine, what would be the level of difficulty faced by the individuals. कि जितने कमोडिटीज हैं, जैसे जैसे कमोडिटीज बढ़ती जाएंगी बार्टर सिस्टम में, अगर बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो जैसे जैसे कमोडिटीज बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे नंबर ऑफ प्राइसेस एग्जिस्टेड भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, है ना। और ये इतने सारे रिलेटिव प्राइसेस हो गए। पर अगर सपोज करो मनी है, अब इसकी आगे की बात करते हैं। सपोज इफ मनी इज देयर, मनी एक्सप्रेस्ड कर, मनी इज देयर, मनी प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ मनी। इफ मनी इन द प्रेजेंस ऑफ मनी, in the presence of money, what happens is the price of any commodity, the price of each commodity, each commodity can be expressed in the form of money, isn't it? कि कमोडिटी का प्राइस उसी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा, isn't it? हेलो, ठीक है। तो अगर सपोज 2 कमोडिटीज हैं तो कितने प्राइस होंगे? अगर कमोडिटीज 2 है, अगर N2 है तो प्राइस की क्या होंगे? प्राइस ऑफ कमोडिटी 1, प्राइस ऑफ कमोडिटी 2, यस और नो। और अगर 3 कमोडिटीज हैं तो कितने प्राइस होंगे? प्राइस ऑफ कमोडिटी 1, प्राइस ऑफ कमोडिटी 2, प्राइस ऑफ कमोडिटी 3। यानी कि जितने कमोडिटीज हैं उतने ही मॉनेटरी टर्म से प्राइस बना दीजिए। अगर मान लीजिए 10 कमोडिटीज हैं, N10 है, तो 10 कमोडिटीज है, कितने प्राइस होंगे? प्राइस ऑफ कमोडिटी 1, प्राइस ऑफ कमोडिटी 2, प्राइस ऑफ कमोडिटी 3 एंड सो ऑन, प्राइस ऑफ कमोडिटी 10। और ऐसी अगर 1000 कमोडिटीज हैं तो प्राइस ऑफ कमोडिटी 1, प्राइस ऑफ कमोडिटी 2, प्राइस ऑफ कमोडिटी 3 एंड सो ऑन, प्राइस ऑफ कमोडिटी 1000th कमोडिटी, इजंट इट? तो अब देखो यहाँ क्या था भाई, यहाँ तो क्या बार्टर सिस्टम में क्या था कि अगर 1000 कमोडिटीज हैं तो 4,99,500 प्राइसेस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और अगर 100 कमोडिटीज हैं तो 4,950 प्राइसेस एग्जिस्ट करेंगे। 5 कमोडिटीज हैं तो एक तरीके से 10 प्राइसेस एग्जिस्ट करेंगे। एंड ये 10 कमोडिटीज है तो एक तरीके से 45 प्राइसेस एग्जिस्ट करेंगे। बट मनी की एग्जिस्टेंस से देखो कितनी एफिशिएंसी बढ़ गई इस अकाउंट में एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट यूज करने से, कि अब हमें क्या करना है कि 1000 प्राइस है, 1000 कमोडिटीज हैं, अगर 1000 कमोडिटीज हैं तो उनके 1000 ही प्राइस टैग्स हो गए, यस और नो? हेलो, यस और नो? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, ये देखो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, बार्टर सिस्टम में यहां कमोडिटीज हैं, ये कमोडिटीज है,
C1 C2 डॉट 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 Cn तक, और इधर भी कमोडिटीज ही हैं, कमोडिटीज हैं क्या, C1 C2 डॉट 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 Cn तक, ठीक है। तो अब ये सारी कमोडिटीज एक दूसरे से एक्सचेंज होगी इस तरह से, कमोडिटी टू कमोडिटी ही प्राइसेस चल रहे हैं, ठीक है। कमोडिटी टू कमोडिटी प्राइसेस चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल जो है ए, सपोज करो ये इंडिविजुअल ए है, तो ये बायर भी है एंड सेलर भी है एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये इसको लगा लीजिए, ये इंडिविजुअल है बी, ये बी इंडिविजुअल है, तो ये भी बायर भी है और सेलर भी है एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। बट अब अगर मनी एग्जिस्ट करती है, इन द प्रेजेंस ऑफ मनी, इन द प्रेजेंस ऑफ मनी, अब क्या है, सपोज करो इंडिविजुअल बी ले लेते हैं पहले, बी इंडिविजुअल है, बी इंडिविजुअल है, बी इंडिविजुअल है, और बी इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली क्या है, इसके पास कमोडिटीज है, मान लीजिए कोई भी कमोडिटीज है, कमोडिटीज है, तो ये पहले सेल करेगा, जब सेल करेगा तो उस कमोडिटी के बदले में जो प्राइसेस होंगे, प्राइसेस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, तो ये सेल एक्टिविटी होगी। फिर ये बी इंडिविजुअल है, बी इंडिविजुअल ही, इंडिविजुअल जो है इसके पास अब मनी है, क्योंकि जो इसने ये सामान सेल किया उसके जो भी प्राइसेस थे वो मनी में एक्सप्रेस किए, सेल करके इसने मनी को ही इकट्ठा कर लिया अपने पास, अब ये परचेज कर सकता है, ठीक है, कोई भी कमोडिटीज ऑफ हिज चॉइस, तो ये यहाँ से क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा। तो एक तरीके से मनी आ गई, तो अब क्या हुआ, कमोडिटी, जो कमोडिटी इसे सेल करनी है और जो कमोडिटी इसे परचेज करनी है, अब ध्यान से देखो, जो कमोडिटी बी को सेल करनी थी और जो कमोडिटी बी को परचेज करनी है, उसी कमोडिटी, इस कमोडिटी के भी प्राइस एक्सप्रेस्ड है मनी में और इस कमोडिटी के भी प्राइस एक्सप्रेस्ड है मनी में, तो दोनों के प्राइसेस मनी में एक्सप्रेस्ड हैं, तो इसने सेल किया, मनी ली, और उसी मनी से इसके प्राइस भी मनी में थे, तो इसको फिर परचेज कर लिया। इज दैट ओके? तो ऐसे ही बी ने किया, सेम वर्क्स फॉर द ए ऑल्सो, तो ए के लिए भी वर्क करेगा। तो इसलिए क्या हो गया कि जब मनी एग्जिस्ट कर रही है तो एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट एक्सचेंज को फैसिलिटेट करती है, यानी कि एक तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करने में आसानी क्रिएट करती है, क्योंकि किसी भी चीज़ के प्राइस को आप मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, किसी भी चीज़ के प्राइस को आप मॉनेटरी टर्म्स में क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। ये हमने यहाँ पर देखा है कि मनी की एग्जिस्टेंस से नंबर ऑफ रिलेटिव प्राइसेस इक्वल्स नंबर ऑफ कमोडिटीज, बट जो बार्टर सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो हेलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, इस पॉइंट में कोई डाउट हो, कोई सवाल पूछना चाहते हो तो यस। हेलो, नहीं, चलिए प्रोसीड। अब हम देखते हैं आगे। यस यस, ओके ओके, now we'll proceed further. Now we'll proceed further. एक मिनट रुकिए। Well, let's start now. So now we will be discussing our next point. The next point would be what do you call it? Money as a store of wealth.
मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो बेटे, जब हम मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू कह रहे हैं तो एक तरीके से स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, मनी इज एक्टिंग एज एन एसेट। मनी इज एक्टिंग एज एन एसेट, यस और नो? क्योंकि जो हमारा एसेट होता है वो हमारी वेल्थ को स्टोर करके रखता है, यानी कि हम अपनी वेल्थ को एसेट की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, इजंट इट? प्लीज पार्टिसिपेट, यस और नो? कि जो हमारे पास वेल्थ होती है, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, उसको हम एसेट की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। तो मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू हम एक्ट कर रही है, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एक्ट कर रही है। अब सपोज करो मनी का एब्सेंस है, इन द एब्सेंस ऑफ मनी क्या होगा बार्टर सिस्टम में? इन द एब्सेंस ऑफ मनी क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ मनी क्या है? वी वुड हैव हंड्रेड्स ऑफ कमोडिटीज, है ना? वी वुड हैव हंड्रेड्स ऑफ कमोडिटीज, hundreds of commodities, hundreds of commodities which would be and which would be inefficient, that is, so that's the correct, would be inefficient form of saving। भाई आजकल तो हमें सेविंग करनी है तो हम क्या करेंगे कि भाई मॉनेटरी टर्म्स में करते हैं, बैंक में डाल देते हैं, एफडी करा लेते हैं, शेयर्स खरीद लेते हैं, डिवेंचर्स खरीद लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं, कोई रियल इस्टेट में कोई लैंड या कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, इजंट इट? गोल्ड परचेज कर लेते हैं, सिल्वर परचेज कर लेते हैं। आज के टाइम तो हम ऐसा करते हैं, ठीक है? बट सपोज करो बार्टर सिस्टम था तो गोल्ड भी इतना ज़्यादा नहीं था, ना स्टॉक्स थे, ना बैंक्स थे, ना डिवेंचर्स थे, ना बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते थे, यस और नो? ना ही किसी और तरह के जो और फाइनेंशियल एसेट्स अवेलेबल हैं मार्केट में वो अवेलेबल होते थे, तो ना ही मनी थी। तो जिसके कारण क्या हुआ कि जब अगर आप सेविंग करोगे तो स्टोर करोगे तो हंड्रेड्स ऑफ कमोडिटीज होंगी जिनकी फॉर्म में आपको सेव करना पड़ेगा। अगर आपके पास वीट है तो वीट को ही सेव करके रखोगे, अगर आपके पास पोटैटोज है तो पोटैटोज को ही सेव करके रखोगे, यानी कि जिस भी तरह की कमोडिटी आपके पास अवेलेबल है आप अपनी सेविंग्स उस कमोडिटी की फॉर्म में ही कर सकते हो इन द एब्सेंस ऑफ मनी। कि मनी की एब्सेंस में अगर आपने सेविंग्स करनी है तो वो सेविंग्स आपकी कमोडिटीज़ की फॉर्म में ही होंगी, वो सेविंग्स आपकी किसी और फॉर्म में नहीं होंगी। और हंड्रेड्स ऑफ कमोडिटीज़ है तो उससे क्या होता है भाई कि वो इनएफिशिएंट रहती हैं सेविंग्स में, ठीक है? एक तो पॉइंट ये है कि वो इनएफिशिएंट रहती हैं सेविंग्स में। एक तो जो क्या कहते हैं लिमिटेशन है अंडर बार्टर सिस्टम स्टोर ऑफ वैल्यू में, वो इनएफिशिएंट फॉर्म ऑफ सेविंग्स है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कमोडिटीज़ जो हैं वो हो सकता है पेरिशेबल हो, और पेरिशेबल होंगी तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो खराब हो जाएंगी, यस और नो? और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खराब होगी तो वो सेविंग्स क्या होगी? जीरो होगी आपकी। प्लीज पार्टिसिपेट। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? हेलो, आर यू लिसनिंग? तो मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए किसी तरीके से आपने कमोडिटीज़ की फॉर्म में ही सेविंग्स कर ली, और कमोडिटीज़ जो है वो कुछ पेरिशेबल भी होंगी, कुछ ऐसी भी होंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिनमें डेप्रिसिएशन भी होगा, ठीक है ना? जिसकी वजह से उनकी वैल्यू और उनकी क्वांटिटी अफेक्ट हो सकती है एडवर्सली, और वैल्यू और क्वांटिटी एडवर्सली अफेक्ट होगी, इसका मतलब आपके एसेट्स कम हो रहे हैं, यही तो मतलब हुआ, यस और नो? ठीक है, इसका मतलब एसेट कम हो रहे, तो इसलिए क्या था, वो इनएफिशिएंट फॉर्म ऑफ सेविंग्स कहलाती है बार्टर सिस्टम में। ठीक है, दूसरा आता है कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। भाई एक तरीके से राइज इन द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज,
या increase in the cost of storage, that would be appropriate to write. You see, increase in the cost of storage, increase in the cost of storage, कि कॉस्ट ऑफ स्टोरेज आपकी बढ़ जाती है। कि भाई आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो लोग होते थे वो अपने जो खजाना होता था या कुछ भी वो होता था, वैल्यूएबल्स होते थे, उनमें उस टाइम पे लॉकर या इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी कि आपके पास कोई लॉकर है या आपके पास कोई सेफ एग्जिस्टेड है या अलमीराज हैं जिनमें आप सेफ करके रख सको। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, घर के आंगन में कोई पेड़ है तो पेड़ के नीचे दबा के रख दिया, घर है तो घर में फर्श पर जो कच्चा फर्श होता था, कच्चे मकान होते थे, उनमें दबा के रख दिया। तो इस तरह से अपने एसेट्स को वो छुपा के रखते थे, गोल्ड सिल्वर वगैरह जो भी कुछ था। तो एक तरीके से अगर मान लीजिए एन नंबर ऑफ कॉमोडिटी, अब गेहूं को तो दबा के नहीं छुपा सकते क्योंकि गेहूं को अगर ज़मीन में दबा दिया तो गेहूं तो ख़राब हो जाएगा क्योंकि पेरिशेबल कॉमोडिटी है, इजंट इट। हेलो, तो उसे तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सेफ कस्टडी में रखना है। तो उससे क्या होता था, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज भी एक तरीके से बढ़ती है, और कॉस्ट ऑफ स्टोरेज भी बढ़ती है और पॉसिबल डैमेज भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज। आपने आंगन में दबाया, रात को कोई खोद के को वहां से उसने डिग आउट कर लिया आपके जो वैल्यूएबल्स आपने रखे थे। आपने सुना होगा कई जगह पहले क्या होता था, किसी ने मकान बनाना शुरू किया तो कहता ज़मीन में से खजाना निकला भाई। ठीक है ना, ज़मीन में से खजाना क्यों निकलता था, क्योंकि लोग दबा के ज़मीन में रखते थे खजाना। ठीक है, इसीलिए ज़मीन में से निकल रहा है। तो बार्टर सिस्टम में ये सारी क्या है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। इज दैट ओके, एटसेट्रा, ऐसे और भी पॉइंट आउट की जा सकती हैं। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं। जबकि एक तरीके से जब मनी आ गई तो मनी को एज एन एसेट लेने लग गए हम लोग। ठीक है, इसमें एक इकोनॉमिस्ट है मिल्टन फ्रीडमैन। तो मिल्टन फ्रीडमैन क्या कहते हैं, मिल्टन फ्रीडमैन का कहना है कि मनी क्या होती है, कहता है मनी सर्व्स as a temporary abode of purchasing power। टेम्परेरी अबॉर्ड ऑफ परचेजिंग पावर, कहता है कि मनी जो है वो एक तरीके से टेम्परेरी अबॉर्ड है किसका, परचेजिंग पावर का। यानी कि अगर आप मनी को देखें तो मनी में क्या है, एक तरीके से हमारी परचेजिंग पावर स्टोर होती है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि भाई आपने सामान बेचा, कोई भी किसी भी कमोडिटी को आपने सेल किया, या शॉपकीपर हो या आपने अपनी सर्विसेज सेल की, तो सर्विसेज सेल करके जो इनकम आपको मिलती है, उस इनकम को आप क्या कह रहे हो, एक तरीके से वो परचेजिंग पावर ही तो है आपकी। कि उस इनकम को आप वैल्यू क्यों करते हो, वो इसीलिए वैल्यू कर रहे हो कि आप उसकी हेल्प से अदर गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर सकते हो, इजंट इट। तो इसलिए उसने कहा कि एक टेम्परेरी अबॉर्ड है परचेजिंग पावर का। अब टेम्परेरी क्यों बोला है, टेम्परेरी आई थिंक बोलने का रीजन ये है क्योंकि दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर एसेट्स। फॉर द सम टाइम मनी विल बी विद यू, बट इफ यू कन्वर्ट इट इनटू सम अदर एसेट, देन the purchasing power would have been shifted from you to some other individual, isn't it। भाई आपके पास जो पैसे हैं, आपने उन पैसों से, उस मनी से आपने क्या किया, सामान खरीदना है। तो आपके पास 1000 रुपए थे, 1000 रुपए का आपने सामान खरीद लिया। तो जब आपने 1000 रुपए का सामान लिया तो आपकी तो परचेजिंग पावर चली गई ना। हेलो, यस और नो भाई, आपकी तो यानी कि आपके पास जो परचेजिंग पावर थी वो एक तरीके से क्या कहते हैं कि टेम्परेरी थी, कि आपके पास जब तक आपके पास है वो है, जब आप उसे खर्च कर दोगे तो वो चली जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि मनी क्योंकि परचेजिंग पावर को स्टोर करके रखती है टेम्परेरी फॉर्म में, इसीलिए लोग क्या करते हैं, इसको स्टोर ऑफ वैल्यू भी बोलते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू मतलब परचेजिंग पावर, स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर का काम करती है मनी।
तो इससे क्या होता है, आप करंटली सेव करते हो, करंट में सेविंग्स करते हो, सो दैट कैन बी स्पेंट इन फ्यूचर, सो दैट कैन बी स्पेंट इन फ्यूचर, ताकि आप फ्यूचर में उसको क्या कर सको, स्पेंड कर सको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो हेलो, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ये स्टोर ऑफ वैल्यू का काम करती है। अब सवाल ये है, सिर्फ मनी ही ये काम नहीं करती है, देर आर सम अदर एसेट्स ऑल्सो, देर आर सम अदर एसेट्स ऑल्सो विच एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम्स में क्या है, देर आर अदर एसेट्स, देर आर अदर एसेट्स ऑल्सो apart from money also that acts as a store of value। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, शेयर्स, बॉन्ड्स, यस और नो, म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, आप रियल इस्टेट ले लीजिए। रियल इस्टेट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जो लैंड बिल्डिंग वगैरह, रियल इस्टेट में लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग एटसेट्रा। तो ये सारी क्या है, ये भी होल्डर्स हैं परचेजिंग पावर का। पर बेसिकली मनी जो है वो भी एक्ट करती है एज अ परचेजिंग पावर। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? यस, हेलो, किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी स्टूडेंट ने कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन? यस एवरीवन, प्लीज टेल मी। क्या कोई स्टूडेंट कोई चीज, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है इससे रिलेटेड? हेलो, अरे भाई, क्या कोई स्टूडेंट पूछना चाहता है? एक दो स्टूडेंट की ही मुझे आवाज आ रही है, बाकी सब कहाँ चले गए हैं? हेलो, हाँ, क्वेश्चन पूछना नहीं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, कोई पूछ सकता है। मैं आज या कल या परसों में आपको ये सारे वीडियोस जो भी पिछले एक दो हफ्ते में हमारी जितनी क्लासें हुई हैं, सभी जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, उनमें जो भी टॉपिक डिस्कस किया, मैं आप सभी लोगों को भेज दूंगा। आप सब उन वीडियोस को बार बार देखिए, अपने रिवीजन कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।